Alright, so in the last lecture we had stopped at this problem, right? And did you copy this problem in your printed notes? Yes. Okay, I think it is on page number 5. Okay, so we have already done this problem last time, but I think I forgot to tell you that you should copy it in your printed notes. So did you copy it? Okay. Now we'll do a few more problems, okay, again based on the last lecture, and उसके बाद हम लोग will start the new topics, ठीक है? So now the next problem, but एक काम करो पहले notebook में ऐसा लिखो, refer printed notes PN, notebook में लिखो, refer printed notes PN for remaining problems. Now we'll do 3-4 mathematical problems like last time, and all of them are in your printed notes. So printed notes निकालो, come on. And in your printed notes, I think take page number 6. तो वहां तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा सबसे ऊपर. Write an algorithm to find the sum of series, और उसके बाद तुमको ये दिखेगा. कैसे इसको रीड करेंगे? Summation I square where I varies from 1 to n. ठीक है? Look here. And हाँ सॉरी, उसके बाद भी क्वेश्चन कंटिन्यू होता है. And also find its क्या? ठीक है, सुनो. अब एक थोड़ा ध्यान दोगे ना तो रियलाइज करोगे कि that question is actually divided into 2 parts. The first half of that question is SPA and the second half of the question is AOA. ऐसा. First half of the question में तुमको क्या करने का है? तुमको खाली इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखने का है. And second half में तुमको उस एल्गोरिथम को एनालाइज करने का है. अभी लास्ट लेक्चर याद करो, अगर मैं बोलता हूँ एनालाइज करना है तो उसका क्या मतलब है? To find its complexity. बराबर? अच्छा. Now let's start with the first half where you are supposed to find summation I square. अभी तो सबसे पहले तुम यूजर से n का वैल्यू मांगोगे. If n is equal to 3, बोलो what are you supposed to find out? Give me the answer in the form of an expression. If n is equal to 3, you are supposed to find summation I square where I varies from 1 to 3. So what will be your output? Give me the answer as an expression. तुमको absolute answer नहीं चाहिए. 1 square plus 2 square plus 3 square. So basically if n is equal to 3, you are supposed to find 1 square plus 2 square plus 3 square. तुमको ये समझ में आया? पक्का? तो उसके लिए ये एल्गोरिथम है which is already there in your printed notes. So as usual step number 1 start, last stop. Step number 2 बोलते हैं read n from the user. Then in step number 3 we are using a variable कौन सा? Sum. Initialize to 0. उसके बाद now there is a for loop and the for loop varies from where to where? 1 to n. ये 1 है ना? For I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. And under that I have written a very simple statement, sum equal to, पढ़ो क्या? Sum plus I into I. हाँ, तो जब I का वैल्यू 1 होगा तो ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, sum is equal to 0 प्लस बोलो क्या? 1 into 1 यानी 1 square. फिर जब I का वैल्यू 2 होगा तो ये होगा sum equal to 0 नहीं 1, ये हाँ 1 प्लस 2 into 2 और वैसे फिर 3 into 3 होगा. समझा? So the logic is done. उसके बाद हम करेंगे display sum. So the algorithm is over. Whatever is related to SPA वो हो गया. Now let's do things related to AOA. now तो भी याद करो, तुमको इसका complexity find करने का है, यानी तुमको G of n find करने का है. अब G of n के लिए तुमको F of n find करने का है. तो F of n के लिए याद करो मैंने तुमको कितना स्टेप सिखाया था? 2. Step number 1. Decide who the hell is the critical operation. थोड़ा रिवाइज करके आया करो. Step number 2. Count how many times that critical operation executes in terms of n. ठीक है? अभी critical operation का definition तुमको याद दिलाता हूँ. A critical operation is any operation which takes significant amount of time. तो अगर मेरे लिए ये critical operation है तो किसी के लिए कोई और हो सकता है. ठीक है? Normally
we consider only those operations as critical operations which depend on n. Very good. Okay, but here for a change what we will do, ध्यान से सुनना, except step number 1 and 6, except step number 1 and 6 we'll consider everything else as a critical operation. So that means we'll consider step number 2 as critical operation, 3 as critical operation, 5 as critical operation, 2, 3, 5. Then within the for loop, we'll consider I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, sum equal to sum plus I into I as critical operation. And then we'll count how many times they execute. ठीक है? चलो देखते हैं. अभी देखो उसके राइट साइड पे काफी जगह है ना? ठीक है, तो अभी जो मैं डिक्टेट करूंगा उसके राइट साइड पे लिखो, काफी जगह है, लिखो. Let the critical operations be steps 2, 3, 5, पहले 5 लिखो, कॉमा I equal to 1, comma I less than equal to n, comma I plus plus, and sum equal to sum plus I into I. Full stop. Accordingly, f of n equal to अभी सुनो, तुम क्रिटिकल ऑपरेशन किसको भी कंसिडर करो वो चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बराबर. बट उसके बाद क्या सही से करना चाहिए, काउंटिंग. बात एकदम सिंपल है, बट उसमें मिस्टेक हो तो 0 मिलेगा. अब लेट मी सी, तुमको एसपी आता है क्या, एओए ने एसपी आता है क्या? अभी तुमको पता है क्रिटिकल ऑपरेशन क्या है, देखो हाँ, 2, 3, 5 है, I equal to 1, I less than equal to 1, I plus plus, sum equal to sum plus I, ये सब क्रिटिकल ऑपरेशन है. मैं तुमको 30 सेकंड्स देता हूं, काउंट करो एंड f of n equal to लिखो. इतना तो तुमको आना चाहिए, एकदम सिंपल है. हो गया? हाँ, बोलो f of n equal to, बोलो क्या? f of n equal to, बोलो क्या? Almost correct. Okay. F of n is equal to 3n plus, हाँ बोलो कितना? 4 plus 4. Very simple. ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स. ये कितनी बार? ये कितनी बार? हाँ, एक्चुअली n प्लस 1 होता है, बट वी कंसीडर इट टू बी n बिकॉज n इज वेरी लार्ज. तो ये n प्लस n कितना हुआ? बाकी सब कितने टाइम्स? 1 टाइम. तो एक बार तो प्लस 4. समझ में आया? यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. फिर इसके लिखो देयरफॉर f of n इज बिग O ऑफ, ऐसा big बिग लिखोगे ना? हाँ लिखो देयरफॉर f of n इज बिग O ऑफ
हाँ बोलो क्या? हाँ बिग ओ कैसे लेते हैं? तुम कांस्टेंट सब निकाल दो, सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है? n, तो n हो गया, खत्म। रिवाइज करके आया करो थोड़ा, याद है ना? हो गया? चलो नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। हाँ अभी डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है, तुमको खुद से कुछ करना है। रीऑर्डर द, बोलो क्या? हाँ, रीऑर्डर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और उसके बाद देखो चार एक्सप्रेशन दिया इन टर्म्स ऑफ n ना। ये देखो ये चार एक्सप्रेशन दिया है विच आर इन टर्म्स ऑफ n। पहले क्वेश्चन समझो, आंसर डिफिकल्ट है बट पहले क्वेश्चन समझो। सुनो, ये जो तुमको चार एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ऐसा समझो दे आर f of n फॉर 4 डिफरेंट एल्गोरिथम्स। दे आर व्हाट? f of n for the f of n for 4 different algorithms। so चार अलग अलग एल्गोरिथम्स है, उनका ये f of n है, f of n है, ठीक है? ऑलराइट। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर ये चारों एल्गोरिथम का f of n है, तो इनमें से सबसे कम टाइम कौन लेगा, सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, ऐसा तुम ऑर्डर में लिखो। तुमको समझा? क्वेश्चन समझा? तो अकॉर्डिंगली उधर मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम, बोलो क्या? मोस्ट एफिशिएंट तो हम आंसर में उसको सबसे पहला लिखेंगे जो सबसे कम टाइम लेता है, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ऐसा इतना समझा? वेट 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 वेट, इतना समझा? सो आई वाज एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन और द आंसर, ठीक है? अभी है ना, इधर आधा आंसर मैं सिखाऊंगा, आधा नहीं, ऑलमोस्ट 80%, एंड बाकी का तुमको खुद से करना है, ठीक है? अभी इधर फॉर फ्यू मिनट्स लेट्स इग्नोर 2 raised to 4, इसको इग्नोर करो और बाकी सब पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, इन दोनों पे वर्क करते हैं, n log n to the base 2 and root n, एंड ये समझने का ट्राई करते हैं कि इन दोनों में से कम टाइम कौन लेगा। नाउ ध्यान दो, डिफिकल्ट है। तुम्हारे प्रिंटेड का पेज नंबर 5 सामने रखो, उधर एक टेबल है ना, टेबल के बाद में तुमने एक एरो बनाया और एरो पे क्या लिखा है तुमने? decreasing efficiency, यानी वो टेबल में जो नीचे है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, बराबर? अच्छा, अब वो टेबल में ये है क्या? n log n to the base 2, क्या हाँ या ना? हाँ है, ठीक है। ये है क्या? रूट ऑफ n? नहीं, n raised to k में ना k is greater than 2, इन n raised to k is greater than 2, तो ये रूट n है ना, वो n raised to k नहीं है, ठीक है? सो ये जो रूट n है ना, एक्चुअली वो टेबल में नहीं है। तो अब इसको कंपेयर कैसे करने का, तो थोड़ा ना मैथमेटिक्स तुमको यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, दिस सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? अभी 2 मिनट के लिए ना n log n to the base 2 को भी मरने दो। लेट्स कंपेयर रूट n एंड n। ये n उस टेबल में है क्या? क्या हाँ या ना? है ना? अभी देखो, इधर देखो, मैथमेटिक्स स्ट्रिक्टली n is actually n raised to 1 and root n is equal to n raised to half, बराबर? अभी लास्ट वीक ना मैंने तुमको एक बात बताई थी और मैंने तुमको बोला था कि अगर ये बात तुमको याद रहती है ना, ओके, तो फिर तुमको ना बहुत सारी चीजें सिंपल लगेगी। क्या मैंने बोला था? एनी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n इज एक्चुअली व्हाट? स्टेशन पे कोई पूछेगा, याद करो, ऐसा मुझे याद आ रहा है? क्या पूछेगा स्टेशन पे? टाइम क्या हुआ? तो तुम किस में आंसर दोगे? हाँ, सो एनीथिंग व्हिच यू सी इन टर्म्स ऑफ n इज एक्चुअली व्हाट? टाइम। याद आ रहा है ये बात? ठीक है। सो बेसिकली ना ये एक बात समझो कि ये ना कुछ टाइम है, ये ना कुछ टाइम है, ठीक है? आई हो गया, इतना समझा तो कुछ चीजें कितनी सिंपल है। अभी मैथमेटिक्स यूज करो। If n is very large, then which expression is a higher value, n raised to half or n raised to 1? n raised to 1 हो गया। तो अगर n raised to 1 is higher than n raised to half, इसका मतलब ये टाइम इससे ज्यादा है, बराबर?
अभी इसको और इसको कंपेयर करो, n log n को, ये टाइम इससे ज्यादा है या कम है? टेबल देख के बोलो। हाँ, तो ये टाइम इससे ज्यादा है, ये टाइम इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये जो टाइम है वो ये टाइम से कम हुआ ना, बराबर। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन अपने को मालूम पड़ गया, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, बराबर। चलो अभी ये सिंपल है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। हाँ बोलो ये किधर आएगा? हाँ, अच्छा इसमें बाय द वे तुम कौन सा टर्म को लोगे पहला? बराबर n क्यूब, क्योंकि अपने को मैक्सिमम में इंटरेस्ट होता है। तो n क्यूब यानी पॉलिनोमियल हुआ ना, तो किधर आएगा बोलो? हाँ वो इधर आएगा, यानी n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n इधर ना। अभी बचा क्या? हाँ तो भाई तुम काम करो, तुम ये इतना कॉपी करो, एंड 2⁴ है ना, ये अपने आप से फिट करो इन ऑर्डर तुमको लिखने का। 2⁴ को खुद से फिट करो। हो गया? हाँ बोलो 2⁴ किधर आया? सबसे ऊपर। वेरी गुड, सबसे ऊपर। तो अगर सबसे ऊपर आया नहीं, वो सबसे कम टाइम ले रहा है ना। हाँ तुमको कैसे मालूम पड़ेगा भाई? क्या? हाँ सुनो, देखो दो बातें हैं। एक तो रूल समझो, रूल क्या? रूल ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट विल ऑलवेज टेक लीस्ट टाइम, कांस्टेंट विल ऑलवेज टेक। एक और बात सुनो, क्या है ना, n is very large, so n is something like 10⁶, 10⁷. So when n is so large, then 2⁴ will obviously take less time. ऐसा है। तो ये दो बातें हैं, तो ये लिख लो सब, ऐसे याद नहीं रहता है। कांस्टेंट ऑलवेज टेक लीस्ट टाइम, and moreover n is very large. And n is very large, so 2⁴ will obviously take lesser time than that large n. And as per the rule, constant always takes least time. हो गया? ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान देना। ऑलराइट, हो गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं। An algorithm reads, sorry, an algorithm runs, हाँ बोलो क्या? An algorithm runs an input of size n. If n is equal to 4096, then runtime is equal to 512 milliseconds. If n is equal to 16384, then runtime is equal to, तुम बोलो, 204. What is the complexity of the algorithm? Okay, सुनो, इधर देखो। अभी अगर तुम क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो तुमको समझेगा क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है। पहले ना ये समझो कि वो क्वेश्चन तुमको क्या दे रहा है और तुमसे क्या मांग रहा है, वो ये समझो तुम ठीक से, ठीक है? क्या है ना, वो क्वेश्चन है ना तुमको, इधर देखो लोग क्या, वो क्वेश्चन तुमको ना एक एल्गोरिथम का दो अलग अलग एग्जीक्यूशंस के बारे में बता रहा है।
एक ही एल्गोरिथम का दो अलग अलग एग्जीक्यूशंस के बारे में बताया है। तो वो क्या कर रहा है, जब वो एल्गोरिथम पहली बार एग्जीक्यूट हुआ तो n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना इतना था और उसको एग्जीक्यूशन टाइम इतना इतना लगा। सेकेंड टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना था, रन टाइम इतना लगा। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा वो तुमको पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, इज इट बिग ऑफ n और बिग ऑफ n स्क्वायर और बिग ऑफ n log n ऐसे। क्वेश्चन समझा? ठीक है, इधर देखो। अभी पहले हाँ सॉल्यूशन दिया है, इधर देखो। अभी मैं इधर ना ऐसा बोलूंगा n1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बताओ? 4009. हाँ, एंड n2 नेक्स्ट क्या बोलो? 16384. 16384। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच द एल्गोरिथम इज वर्किंग। हाँ, n1 का मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूशन, 2 का मतलब सेकंड एग्जीक्यूशन, ऐसा। तो पहले एग्जीक्यूशन में इतना, सेकंड में इतना। हाँ? अभी याद करो लास्ट लेक्चर 1760 बार मैंने चीज बोला। कोई अगर बोले f of n, एग्जीक्यूशन टाइम, एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज वन एंड द Same. हाँ, तो f of n1 इज द एग्जीक्यूशन टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट एग्जीक्यूशन। कितना है बोलो? 512 milliseconds. 512 मिलीसेकंड्स। एंड नेक्स्ट में कितना है बोलो? 2048. 2048 मिलीसेकंड्स। बराबर? ठीक है। अच्छा, अभी इधर देखो ध्यान से। डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन n1 एंड n2? If you see carefully, you will realize n2 is equal to 4 into n1. Do you see any relationship between f of n1 and f of n2? Yes. f of n2 is equal to 4 into f of n1. ठीक है, इतना तो हो गया ना? इतना तो समझा ना? अभी याद करो लास्ट टाइम ऐसा बोले ग्राफ बनाया था तुमने, पेज नंबर 5 पे बनाया, याद आ रहा है? भले पेज टर्न मत करो, याद आ रहा है? वो ग्राफ पे इधर n था और इधर एग्जीक्यूशन टाइम था। अभी उस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए एक बात सुनो। इफ द इंक्रीज in the value of n is 4 times, then the increase in execution time is also 4 times. Input size 4 गुना बढ़ गया तो एग्जीक्यूशन टाइम भी 4 गुना बढ़ गया, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है? लीनियर। सो हियर f of n is big O of n. Okay, f of n is big O of n. All right. In other words, the efficiency is linear. ये समझा? पक्का? Sure? ठीक है, लिखेंगे, लिखो। It is given that solution के नीचे it is given that ये देखो, ये दो लाइन कॉपी करो, ये दो लाइन, पूरा लाइन। लिखा? It should be noted that ये कॉपी करो, ये दो लाइन। लिखा? Here when input size increases 4 times, the corresponding increase in execution time is also by a factor of 4.
to stop. Hence, the efficiency is linear, underline linear, and f of n is big O of n. Big O ऐसा लिखने का, and f of n is big O of n. ठीक है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. That problem does not require any explanation. Okay, I'll just tell you something. सुनो इधर देखो. तुम क्या करो, प्रॉब्लम का ना क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन, हाँ, एंड वो जो प्रॉब्लम है ना, that problem is either exactly same as previous problem or exactly opposite as previous problem. तो तुम क्वेश्चन रीड करो और मेरे को बताओ सेम है या अपोजिट है. या तो एग्जैक्टली सेम है या एग्जैक्टली अपोजिट है. प्रॉब्लम नंबर 13. सॉरी, पेज नंबर 7 आई थिंक. हाँ बोलो, सेम है अपोजिट है? Opposite. अपोजिट है. कैसे अपोजिट है सुनो. उधर है ना, थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे, उधर n1 दिया है, f of n1 दिया है, n2 दिया है, बराबर. बट उधर क्या नहीं दिया है? f of n2. बट उधर है ना, ये बताया गया है कि whether the algorithm is linear or quadratic or cubic, वैसा. ओके, यानी उधर है ना, ये देखो, ये चीज बताया है, ये वाला. ओके, तो उधर है ना, चार चीज क्या बताया है? 1 2 3 और ये 4, ये बताया है. और इससे तुमको ये ढूंढने का है ऐसा. तो इट्स अपोजिट ऑफ द प्रीवियस. समझा? पूरा क्वेश्चन आंसर सब प्रिंटेड नोट्स में है. ओके, नाउ प्रिंटेड नोट्स ओपन रहने दो. कम बैक टू योर नोटबुक एंड हेडिंग द नोट, हेडिंग द नोट. सुनो, अभी तुमको ना 2 नोट्स अपने वर्ड्स में लिखने का है. इधर पहला नोट, ये अभी तक हम जो बोले थे ना, f of n, f of n, f of n, f of n. कोई कोई टीचर जिसको बोलते हैं, बोलो क्या? t of n और कैपिटल T of n और कैपिटल T of कैपिटल n, वो सब सेम ही है. f बोलो, t बोलो, it is one and the same. By the way, t stands for what? Time complexity. Okay, if I next lecture में हम भी t बोलेंगे. एक है ना पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जब हम f बोलते हैं, और एक सिचुएशन होता है जब हम t बोलते हैं. कब, वो मैं बाद में बताऊं. फॉर टाइमिंग इतना लिख दो कि इसका सबका मतलब एक ही है. लिखो अपने. सॉरी, हो गया. दूसरी बात, अभी ये ध्यान देना कि इधर जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो यहां भी यूज होगा. इसे ध्यान से सुनना. बी वेरी अटेंटिव. सुनो, शायद तुमको याद होगा लास्ट वीक हमने बिग ओ नोटेशन पढ़ा था. हाँ, ध्यान देना और अपने वर्ड्स में नोट लिखने का. तो हमने ना ऐसा पढ़ा था, इफ f of n is big O of g of n, then mathematically it means that f of n is less than equal to c into g of n, where या फिर हम ऐसा बोलते हैं at, क्या at क्या? हाँ, तो लास्ट वीक ना हमने इतना पढ़ा था. ओके, हम बोलते हैं f of n is less than equal to c into g of n at very large values of n. ठीक है. अभी कोई कोई टीचर्स, कोई कोई टेक्स्ट बुक्स ना, ये ब्लू कलर को ना ये रेड कलर के जैसा लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर दे राइट रेड कलर. सो व्हाट दे राइट इज